Yes, student, good morning to all. In today's class, we will read the chapter 4 of short stories, and the name of the chapter is Evelyn. Evelyn, short stories by James Joyce. First, we will read about the author. James Joyce was an Irish novelist and poet who is regarded as one of the most influential and celebrated writers of the 20th century. Joyce was a master of English language, and his landmark book Ulysses is often hailed as one of the finest novels ever written. His exploration of language and new literary forms showed not only his genius as a writer but spawned a fresh approach for novelists. About the story, a psychological study in frustration, is about a young woman who longs to escape from the tyranny of her father and responsibilities of surrogate motherhood thrust on her after the death of her mother. When she is offered an avenue to escape, she discovers that she lacks the spirit, the courage and the strength of character to take it. इसमें जो है एक लड़की है उसके बारे में बताया गया कि वो किस तरह से फ्रस्ट्रेशन में जो है कई स्टेप लेती है, पर बाद में उसको ये लगता है कि इसने ये स्टेप जो है उसके लिए सही नहीं होगा, तो वो इसी जो है आधा जून में बीच में एक द्वंद्व रहता है उसके मन में कि वो क्या करे और क्या नहीं करे। तो ये स्टोरी इसके बारे में है। We will read the chapter. She sat at the window watching the evening invade the avenue. Her head was leaned against the window curtains and in her nostrils was the odor of dusty serotonin. She was tired. Few people passed. The man out of the last house passed on his way home. She heard his footsteps clacking along the concrete pavement and afterward crunching on the cinder path before the new red houses. One time there used to be a field there in which they used to play every evening with other people's children. Then a man from Belfast bought the field and built houses in it, not like their little brown houses but bright brick houses with shining roofs. The children of the avenue used to play together in that field, the Devines, the Waters, the Duns, Little Cope, the cripple, she and her brothers and sisters. Ernest, however, never played. He was too grown up. Her father used often to hunt them in out of the field with his blackthorn stick. But usually Little Co used to keep Nix and call out when he saw her father coming. Still they seemed to have been rather happy then. Her father was not so bad then, and besides, her mother was alive. That was a long time ago. She and her brothers and sisters were all grown up, and her mother was dead. Tizzledon was dead too, and the Waters had gone back to England. Everything changes. Now she was going to go away like the others, to leave her home. She looked around the room, reviewing all its familiar objects which she had dusted once a week for so many years, wondering where on earth all the dust came from. Perhaps she would never see again those familiar objects from which she had never dreamed of being divided. And yet, during all those years, she had never found out the name of the priest whose yellowing photograph hung on the wall above the broken harmonium beside the colored print of the promises made to blessed Margaret Mary Alacu. इसमें देखिए जो स्टार्टिंग यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें आपको चैप्टर्स में अगर आप इस तरह से इसको समझें तो वो जो है एक लड़की है वह रास्ते पर फैलती हुई शाम को खिड़की के पास बैठी निहार रही थी। उसका सिर खिड़की के पर्दों के सहारे झुका हुआ था और उसके नथुनों में फूल से ढके क्रेटोन की महक थी। वह थकी हुई थी। बहुत कम लोग आ जा रहे थे। अंतिम मकान से निकलने वाला व्यक्ति उस रास्ते से चला गया। उसने उसके कदमों की खड़खड़ की आवाज़ उस कंक्रीट के फर्श पर सुनी और उसके बाद लाल रेत के रास्ते पर नए लाल मकानों के सामने उसकी जूतों की चरमराहट सुनी। यानी कुल मिला के जब वो खिड़की के पास बैठी है तो आसपास अपन कभी बैठते तो होता है ना, अपने को हलचल पता चलती, कौन क्या कर रखा है, आवाज़ से पता चल जाता है। किसी समय वहाँ पर एक मैदान था जहाँ वह अन्य बच्चों के साथ प्रत्येक शाम खेला करती थी। उसके बाद बेलफास्ट के एक आदमी ने उसे खरीद लिया और उस मैदान में मकान बना दिए। उनके मकान अपने भूरे मकानों जैसे नहीं थे बल्कि चमकदार
चमकदार ईंट के मकान, उनकी छतें चमकदार थी। वह मैदान गलियारे के बच्चों के लिए खेलने का काम आता था। डिवाइन्स, वॉटर्स, डंस, छोटी सी अपंग, योग, वह और उसके भाई बहन सभी खेलते थे। हालांकि अर्नेस्ट ज़्यादा बड़ा होने के कारण कभी नहीं खेलता था। उसके पिताजी उन बच्चों को धमकाने के लिए अपने काले कांटों वाली स्टिक से मैदान में भीतर और बाहर पीछा करते थे, परंतु ज़्यादातर छोटी सी क्योक जासूसी करती रहती थी और जब उसके पिताजी को आते हुए देखती थी तो आवाज़ लगा देती थी। कुल मिलाकर उसको वहाँ पे बैठे बैठे बचपन की यादें भी ताज़ा हो रही थी। फिर वे भी उन दिनों खुश दिखाई देते थे। उसके पिताजी इतने ज़्यादा बुरे नहीं थे और इसके अलावा उसकी माँ भी जीवित थी। इन बातों को बहुत समय बीत गया। वह, उसके भाई और बहन बड़े हो गए और उसकी माँ मर चुकी थी। टीजी डन भी मर चुका था और वॉटर्स परिवार वापस इंग्लैंड जा चुका था। सब कुछ बदल जाता है। वह भी अब दूसरों की तरह घर छोड़कर जा रही थी। अब आगे क्यों जा रही थी घर छोड़ के? घर, उसने कमरे में चारों तरफ देखा, सभी परिचित वस्तुओं को पुनः देखा जिनकी वह सप्ताह में एक बार इतने वर्षों से धूल साफ करती आ रही थी। वह यह जानने को उत्सुक थी कि इतनी सारी धूल इस पृथ्वी पर कहाँ से आती है। शायद अब वो पुनः उन सभी परिचित वस्तुओं को नहीं देख सकेगी जिनसे अलग होने की उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और फिर भी उन वर्षों के दौरान उसे उस पादरी का नाम नहीं पता चला था जिसकी पीली पड़ती जा रही फ़ोटो टूटे हुए हारमोनियम के ऊपर दीवार पर टंगी हुई थी। यानी बहुत पुरानी फ़ोटो उसके घर में थी। यानी वो सब कुछ याद कर रही थी कि मैं इस घर की सफाई कैसे करती आ रही हूँ और अब मैं ये नहीं कर पाऊँगी। और बगल में मार्गरेट मेरी एलिकॉक से किए गए वादे की रंगीन मुद्रित प्रतियाँ रखी हुई थी। वो उसके पिताजी के स्कूल के मित्र थे। जब भी कभी वह किसी आने वाले को फ़ोटो दिखाते तो उसके पिताजी सहसा कह उठते थे कि अब यह मेलबोर्न में है। He had been a school friend of her father. Whenever he showed the photograph to a visitor, her father used to pass it with a casual word, "He is in Melbourne now." She had consented to go away, to leave her home. Was that wise? She tried to weigh each side of the question. In her home, anyway, she had shelter and food. She had those whom she had known all her life about her. Of course, she had to work hard, both in the house and at business. What would they say of her in the stores when they found out that she had run away with a fellow? Say she was a fool, perhaps, and her place would be filled up by advertisement. Miss Gavin would be glad. She had always had no age on her, especially whenever there were people listening. Miss Hill, don't you see these ladies are waiting? Look lively, Miss Hill, please. She would not cry many tears at leaving the stores, but in her new home, in a distant, unknown country, it would not be like that. Then she would be married, she Evelyn. People would treat her with respect then. She thought, though she was over 19, she sometimes felt herself in danger of her father's violence. She knew it was that had given her the palpitations. When they were growing up, he had never gone for her like he used to go for Harry and Ernest, because she was a girl, but literally he had begun to threaten her and say what he would to do her only for her dead mother's sake. And now she had nobody to protect her. Ernest was dead then. Harry, who was in the church decorating business, was nearly always down for money on Saturday nights and had begun to weary her unspeakably. She always gave her entire wages, 7 shillings, and Harry always sent up what he could, but the trouble was to get any money from her father. He said she used to squander the money, that she had no head, that she wasn't going to give her his heart, earned money to throw about the streets, and much more, for he was usually fairly bad on Saturday night. आगे देखें, वो अपने घर छोड़ने को, बाहर जाने को राज़ी हो गई थी। क्या यह बुद्धिपूर्णता का काम था? उसने इस प्रश्न के दोनों पक्षों को तोलने का प्रयास किया।
जो भी हो, उसे अपने घर में खाने पीने व रहने का आराम मिल रहा था। जिन्हें वह अपने जीवन में जानती थी, वो इसके साथ थे। निश्चित रूप से उसे दोनों जगह पर बहुत अधिक काम करना पड़ रहा था, घर पर भी और व्यापार में भी। यदि वह किसी के साथ भाग जाएगी तो स्टोर में लोग क्या कहेंगे? वे कहेंगे वह शायद मूर्ख थी, उसका स्थान विज्ञापन निकालकर किसी अन्य द्वारा भर दिया जाएगा। मिस गवन खुश होगी, वह हमेशा दिखाती रहती थी कि उससे बड़े पद पर है, खास तौर से जब सभी लोग सुन रहे होते। मिस हिल, क्या आपको पता नहीं महिलाएं इंतजार कर रही हैं? मिस हिल, कृपया हंसमुख रहिए, स्टोर छोड़ने पर उसे किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। यानी वो जब काम करती थी वो उनके बारे में भी सोचती थी कि लोग क्या कहेंगे, ठीक है ना। वो ये कल्पनाएं लगा रही थी कि अगर मैं चली गई तो जो है क्या बातें हो सकती है। परंतु दूर अनजान शहर में उसके नए मकान में इस प्रकार का वातावरण नहीं होगा। उस समय उसकी शादी हो चुकी होगी, उस इवलिन की, यानी इस करेक्टर का नाम क्या है? इवलिन। लोग उस समय उसका आदर करेंगे, उसके साथ वैसा व्यवहार होगा जैसे उसकी माँ के साथ होता था। इस समय भी यद्यपि वह 19 साल से अधिक की थी, उसे कभी कभी अपने पिताजी की पिटाई या दुर्व्यवहार से डर लगता था। वह जानती थी कि उनकी भैंसें वे कांपने लग जाती थी। जब वे भाई बहन बड़े हो रहे थे तब उसके पिता कभी उसके पास नहीं गई, जैसे कि हैरी और अर्नेस्ट के पास जाते थे, क्योंकि वह एक लड़की थी। परंतु बाद में वो उसे धमकाने लगे थे और कहते थे कि उसके लिए जो भी करेंगे सिर्फ उसकी मरी हुई माँ की खातिर करेंगे। और अब उसके पास रक्षा के लिए कोई नहीं था। अर्नेस्ट तो मर चुका है और हैरी जो चर्च के यानी उसका एक भाई मर चुका था। हैरी था एक सजावट के व्यवसाय को संभालता था, हमेशा अक्सर कहीं देहात में व्यस्त रहता था। इसके अतिरिक्त शनिवार रात्रि को पैसे के लिए रोज गृह कलेश होता था और उसे जो है बहुत ही वो अवर्णनीय था, रूप से परेशान करता रहता था। वह हमेशा पिता को अपनी सारी मजदूरी दे देती थी, 7 शीलिंग, और हैरी जितना हो सकता था उन्हें भेज देता था। परंतु परेशानी यह थी कि उसे अपने पिता से पैसे वापस नहीं मिल पाते थे, यानी जो कमाती थी सारे उसके जो है पिताजी ले लेते थे। वे कहते थे कि वह पैसे की फिजूल खर्ची करती है। वो कहते थे कि वह मस्तिष्क का प्रयोग नहीं करती। वे कहते, मैं अपनी गाढ़ी मेहनत की कमाई की गलियों में फेंकने के लिए तुम्हें नहीं दे सकता। और उससे भी कहीं अधिक, क्योंकि शनिवार रात को वो बहुत बुरा व्यवहार करते थे। अंत में उसे पैसे दे देता और उससे कहता कि वह रविवार का खाना खरीद कर दे आए। उसके बाद उसे तेजी से अपने काले चमड़े के पर्स को कस के पकड़कर बाहर आने के लिए भागना होता था। धक्का मुक्की करते हुए भीड़ को चीरकर वह जाती, ढेर सारे सामान का बोझ साथ लिए अपने बहुत देर से लौटकर आया करती थी। वह घर को कठिन मेहनत कर संभाले रखती थी तथा वह ध्यान रखती थी कि जिन बच्चों का भार उसके ऊपर है वे समय पर स्कूल जाएं और नियमित रूप से खाना खाएं। यह बहुत ही कठिन कार्य था, कठिन जीवन, परंतु अब कि वह ये सब कुछ छोड़ने जा रही थी, वो इसे पूर्ण रूप से अनिश्चित जीवन नहीं मानती थी। The money and asked her if she had any intention of buying Sunday's dinner. Then she had to rush out as quickly as she could and do her marketing, holding her black leather purse tightly in her hand, and she elbowed her way through the crowds and returning home late under her load of provision. She had hard work to keep the house together and to see that the 2 young children who had been left to her charge went to school regularly and got their meals regularly. It was hard work, a hard life, but now that she was about to live, and she did not find it a wholly undesirable life. She was about to explore another life with Frank. Frank was very kind, manly, open hearted. She was to go away with him by the night boat, to be in his wife, and to live with him in Burns, years where he had a home waiting for her. How well she remembered the first time she had seen him. He was lodging in a house on the main road where she used to visit. It seemed a few weeks ago. He was standing at the gate, his peaked cap pushed back on his head, and his hair tumbled forward over a face of bronze. Then they had come to know each other. He used to meet her outside the stores every evening and see her home. She sat in unaccustomed part of the theatre with him. He was awfully fond of music and sang a little. People the less that loves a sailor. She always felt pleasantly confused. He used to call her Poppins out of fun. First of all, it had been excitement for her to have a fellow, and then she had begun to like him. He had tales of distant countries. He had started as a deck boy at £1 a month on a ship of the Ellen line going out to Canada. अब आगे इसमें देखिए,
ये सब कुछ सोच ही रही होती कि हाँ मेरे को ये सब कुछ जोड़ के जाना है। और अब वो फ्रैंक के साथ, फ्रैंक फ्रैंक के साथ दूसरे प्रकार का जीवन तलाशने जा रही थी। फ्रैंक बहुत ही दयालु पुरुष था, खुले दिल वाला था। उसके साथ रात्रि की बोट नाव द्वारा उसकी पत्नी के रूप में उसके साथ ब्यूनस आयर्स में रहने के लिए जाने वाली थी। जब उसका फ्रैंक का अपना घर है जो उसका इंतज़ार कर रहा है। उसको कितनी अच्छी तरह याद है कि वह दिन जब उसने फ्रैंक को पहली बार देखा था। वो मुख्य सड़क पर एक मकान में रहता था, वहाँ लड़की जाया करती थी। यहाँ कुछ हफ्ते पहले की बात लगती है। और गेट पर खड़ा रहा हुआ था, उसकी गोल टोपी उसके सिर पर झुकी हुई थी और उसके बाल उसके चेहरे पर आगे गिरे हुए थे। उसके बाद से एक दूसरे को जानने लगे। वो उससे स्टोर जहाँ लड़की काम करती थी पर शाम को मिला करता था और उसे घर ले जाता। वो उसे बोहेमियन गर्ल दिखाने ले गया था और यानी पिक्चर का नाम है। उत्तेजित खुशी हो गई थी जब वो उसके साथ थिएटर के एकांत भाग में बैठा था। वह संगीत का बेहद शौकीन था और थोड़ा बहुत गाना जानता था। लोग जानते थे कि वे एक दूसरे को प्यार करते हैं और जब वो उस लड़की के बारे में जो नाविक को प्यार करती गाता था तो वो विचलित होकर खुश हो जाती थी। वो उससे मजाक में पॉम्पस कहता। शुरू में तो उसके साथ रहना उसको उत्तेजनापूर्ण लगता था और बाद में उसे चाहने लगी थी। उसके पास दूसरे देश की गाथाएं थी, अर्थात वह दूसरे देशों की प्यार की गाथाएं सुनाया करता। उसने नाविक के रूप में £1 प्रति माह वेतन पर एलन लाइन के रूप में नौकरी शुरू करी थी जो कनाडा जाता था। वह जिन जिन जहाज़ों पर काम कर चुका था उसने उन जहाज़ों के नाम उसे बताए और विभिन्न सेवाओं के नाम बताए। उसने जहाज़ से मेगलन की खाड़ी की यात्रा की थी और उसने भयानक पेंटागोनियंस जनजाति के लोगों की कहानियों से सुनाई। उसने बताया कि वह ब्यूनस आयर्स में रहता है और वह सिर्फ छुट्टी के लिए ही उसे पुराने देश में आया था। वास्तव में उसकी लड़की के पिता को इस मामले का पता चल गया था और उन्होंने इससे फ्रैंक से कोई भी बात करने के लिए उसको मना कर दिया था। उन्होंने कहा मैं नाविक लोगों को अच्छे तरह से जानता हूँ। He had sailed through the straits of Magellan and he told her stories of the terrible Patagonians. He had fallen on his feet and Buenos Aires and said he come over to the old country just for a holiday. Of course, her father had found out of the affair and had forbidden her to have anything to say to. I know these silly chaps, he had. One day he had quarrelled with Frank, and after that she had to meet her lover secretly. The evening deep in the avenue, the white of two letters in her lap grew indistinct. One was to Harry, the other was to her father. Ernest had been a favourite, but she liked Harry too. Her father was becoming old lately. She noticed. He would miss her. Sometimes he could be very nice. Not long before, when she had been laid up her day, he had read out a ghost story and made toast for her at the fire. Another day, when their mother was alive, they had all gone for a picnic to the Hill of Hound. She remembered her father putting on her mother's bonnet to make the children laugh. Her time was running out, but she continued to sit up the window, leaning her head against the window curtain, inhaling the odor of dusty curtain. Down far in the avenue, could hear a street organ playing. She knew the air. Strange that she should come that very night to remind her of the promise to her mother, her promise to keep the home together as long as she could. She remembered the last night of her mother's illness. She was again in the closed dark room at the other side of the hall, and outside she heard a melancholy air of Italy. The organ player had been ordered to go away and given 6 pence. She remembered her father strutting back into the sick room saying, "Damn Italians, coming over here." As she mused, the pitiful vision of her mother's life lays its spell on the very cook of her being, that life of commonplace sacrifices closing in final craziness. She trembled as she heard again her mother's voice saying constantly with foolish insistence, "Deravin Saran, Deravin Saran." आगे देखें इसमें, एक दिन उन्होंने फ्रैंक से झगड़ा कर लिया था, यानी उसके पिताजी ने झगड़ा कर लिया था जब उनको मामला पता चला था। और उसके बाद से उसने अपने प्रेमी से छिपकर मिलना शुरू कर दिया। शाम उस गलियारे में गहराती गई। उसकी गोद में पड़े 2 पत्रों की सफ़ेद धुंधली हो गई थी अंधेरे के कारण। एक पत्र हैरी के लिए था तथा दूसरा उसके पिताजी के लिए। यानी वो अजीब ही पेशोपेश में थी कि वो क्या करे। एक तरफ तो उसका बॉयफ्रेंड था, एक तरफ उसके घर वाले थे, और एक बार उसकी माँ का जो दिया हुआ उसको वचन था कि वो बच्चों को संभालेगी, बाकी के भाई बहनों को।
अर्नेस्ट उसके लिए बहुत प्यारा था, लेकिन वह हैरी को भी प्यार करती थी। उसने देखा कि उसके पिता वृद्ध होते चले जा रहे हैं, वो उसे याद करेंगे। कभी कभी वो बहुत अच्छे बन जाया करते थे। अधिक समय नहीं हुआ, जब वह एक दिन के लिए बीमार पड़ी थी तब उन्होंने उसे भूत की एक कहानी पढ़कर सुनाई। उसके लिए आग पर टोस्ट पकाए। एक अन्य दिन जब उनकी माँ जीवित थी, ये सब हौद की पहाड़ी पर पिकनिक पर गए थे। उसे याद था कि सब बच्चों को हंसाने के लिए उसके पिता और उसकी माँ का कैप लगाए हुए थे। उसका समय भागा जा रहा था, परंतु वो लगातार खिड़की के पास बैठी रही, अपने सिर को खिड़की के पर्दे पर टिकाए रही तथा दूर से बड़े क्रैटोन की महक लेती रही। दूर गलियारे में उसे एक वाद्य की बजने की आवाज़ सुनाई दी। वो संगीत और जुड़ी हुई माँ की मृत्यु की स्थिति को जानती थी। उसे बड़ा अजीब सा लगा कि यह आवाज़ उस रात्रि को उसकी माँ के वादों को याद दिलाने के लिए आनी थी। उसके द्वारा माँ से किया गया वादा कि जब तक संभव हो सकेगा परिवार के सदस्यों को संगठित रखेगी। उसे अपनी माँ की बीमारी की अंतिम रात याद आई। वो एक बार फिर हॉल के दूसरे और अंत के अंधेरे कमरे में थी और अपनी इटली की दुखद स्वरी लहरी का चित्कार सुनी। वाद्य बजाने वाले जाने के लिए कह दिया करते थे, उसे 6 पैसे दे दिए गए थे। उसे याद है कि जब उसके पिताजी बीमारी के कष्ट में अपने जो है दम का प्रदर्शन करते थे, कह रहे थे, निंदनीय इटली वासी इधर ही आ रहे हो। जैसे उसने अपने चिंतन के उसे अपनी माँ की दयनीय स्तर का स्मरण हो गया। उसने प्रभाव दिखाया कि उसकी ज़िंदगी का एक बलिदान उसको अंत में पागलपन की ओर ले जा रहा है। जब उसने माँ की आवाज़ को पुनः सुना तो काँपने लगी। उसकी माँ लगातार मूर्खतापूर्ण आग्रह कर रही थी, सुख का अंत दुख है। यानी कुल मिला के वो जो है अपनी माँ को दिए हुए वचन को कि हाँ वो सबकी देखभाल करेगी, घर को संभाले रखेगी, उसको ये भी था कि अगर मैं चली जाऊँगी तो पीछे से कौन संभालेगा। तो वो अजीब भी द्वंद्व में फंसी हुई थी। She stood up in a sudden impulse of terror. Escape, she must escape. Frank would save her. He would give her life, perhaps love too, but she wanted to live. Why would she be unhappy? She had a right to happiness. Frank would take her in his arms, hold her in his arm. He would save her. She stood among the swaying crowd in the station at the north wall. He held her hand and she knew that he was speaking to her, saying something about the passage over and over again. The station was full of soldiers with brown baggages. Through the wide doors of the shed, she caught a glimpse of the black mass of the boat lying in the beside the quay wall imminent pathholes. She answered nothing. She felt her cheek pale and cold and out of maze of distress. She prayed to God to direct her, to show her what was her duty. The boat blew a long, mournful whistle into the mist. If she went tomorrow, she would be the sea with Frank, steaming toward Buenos Aires. Their passage had been booked. Could she still draw back after all had done for her? Her distress awoke a nausea in her body, and she kept moving her lips in silent, fervent prayer. A bell changed upon her heart. She felt them seize her hand. Come. All the seas of the world tumbled about her heart. She was drawing her into them. He would drown her. He gripped with the both hands at the iron railing. Come. No, no, no. It was impossible. Her hands clutched the iron in frenzy. Amid the sea's waves, she sent a cry of anguish. Evelyn, Evie! He rushed beyond the barrier and called to her to follow. He was shouted at to go on, but he still called to her. She sat a white face to him, passive, like a helpless animal. Her eyes gave him no sign of love or favor or recognition. वह अचानक बह के आवेश में खड़ी हो गई। बचना होगा, उसे अपना बचाव करना होगा। फ्रैंक उसकी रक्षा करेगा। अब एक तरफ वो बॉयफ्रेंड के भी साथ भी जाना चाहती थी। वो उसे जीवित रखेगा, शायद प्यार भी देगा, लेकिन वह जीवित रहना चाहती थी। वह दुखी क्यों रहे, उसे प्रसन्न रहने का अधिकार है। फ्रैंक उसे अपने बाहों में लेगा और अपने बाहों में जकड़ लेगा, वह उसे बचा लेगा। वह नॉर्थ वेल स्टेशन पर झूमती हुई भीड़ के पास खड़ी हो गई। उसने उसका हाथ पकड़ा हुआ था, यानी फ्रैंक ने उस लड़की का हाथ पकड़ा हुआ था और वह जानती थी कि उसे बार बार रास्ते के बारे में कुछ कहते हुए बात कर रहा था। स्टेशन सिपाहियों से तथा उनके बुरे सामान से भरा हुआ था। शेड के चौड़े चौड़े द्वारों से उसने नाव के काले पिंड की झलक देखी जो बंदरगाह की गोदी में पास पड़ी हुई थी तथा जिसमें चमकीले झरोखे थे। उसने कुछ उत्तर नहीं दिया। उसने अपना गाल पीला और ठंडा महसूस किया। मस्तिष्क की भ्रांत स्थिति में उसने ईश्वर से उसे मार्गदर्शन देने के लिए प्रार्थना की कि वह ईश्वर से उसका कर्तव्य बताए। जहाज़ ने उस धुन में एक लंबी दुखदायी सीटी बजाई। यदि वह चली जाती,
कल वह फ्रैंक के साथ ब्यूनस आयर्स की तरफ यात्रा करते हुए समुद्र पर होगी। उनकी यात्रा बुक हो चुकी थी। उसने उसके लिए इतना सब कुछ किया था, उसके बाद क्या वह पीछे हट सकती थी? उसकी विपत्ति से उसकी उबकाई से आने लगी और वह शांत होकर तीव्र भावनाओं के साथ प्रार्थना करते हुए होठ हिलाती थी। उसके दिल में घंटी बजने की आवाज़ आने लगी। उसे ऐसा लगा जैसे उसने फ्रैंक ने उस लड़की का हाथ कसकर पकड़ रखा हो। आओ, उसके इवलिन के दिल में भावनाओं के संबंध उमड़ने लगे। वह उसको उनमें खींच रहा था, वो उसे डिबो देगा। उसने दोनों हाथ से लोहे की रेलिंग कसकर पकड़ ली। आओ, नहीं नहीं नहीं, यह असंभव था। उसके साथ उन्माद की अवस्था में लोहे की रेलिंग से चिपक गए। समुद्र के बीच वह तीव्र वेदना में चीखे, एवलिन, ईवी। वो बैरियर के बाहर दौड़ा और उसे पीछे आने के लिए बुलाया। लड़की ने चिल्लाकर उसे चले जाने के लिए कहा, परंतु फिर भी वह उसे बुलाता रहा। उसने उसकी बात को निष्क्रिय, एक असहाय जानवर की तरह अस्वीकार कर दिया। उसकी आंखों में फ्रैंक के लिए ना प्यार का, ना अलविदा का, ना ही स्वीकृति का कोई चिन्ह था। और इस तरह से जो है वो इसी द्वंद्व में रह गई। So students, it is all about today's class. Thank you.